सर मैं ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, लेट मी कम स्ट्रेट. Sir, the government want to punish Bengal. Let them proceed. We won't bow. You want to freeze our funds? We will persist. मैं क्यों कह रहा हूँ persist? क्योंकि पीएम आवास से लेके, सड़क से लेके, मनरेगा से लेके सारे पैसे बंगाल के पिछले 5 साल से ये सरकार ने रोक के रखा है. प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात किया है, हम स्वनिर्भर बंगाल क्या होता है काम करके दिखाया है. So you want to punish Bengal? Proceed, we won't bow. You want to freeze our funds? We will persist. You want to profile and persecute our youth? We will protect them. You want to starve our schemes? We will sustain our people. Bengal's spine was not ever bent by surrender, nor softened by sermons of hate. It is forged in struggle, tempered in sacrifice, and is not for sale. Go ahead, send your audits. We will answer them. Unleash your agencies. We will confront them. Delay our clearances. We will chronicle every day stolen, every stolen day. But remember this, files can be frozen, funds can be stalled, voices can be suppressed, but memories can't be erased. And when the people rise and the ballot breaks the silence, we will settle the final account. You will wear the mask of the union, we will raise the mirror of the people. And when truth looks back, power will bend and we'll have to blink first. So this reminds me again that I come from an India that celebrates labor as a backbone of the economy, the hands that build our highways, factories, ports, cities, this parliament. But I also represent an India where that very labor, when it travels from Bengal, is no longer seen as a labor, he's seen as a suspect. Punished for the language he speaks. I come from an India where Northeast is proudly called Ashtalakshmi. And I also come from an India where Manipur bled for 864 days and the Prime Minister found no time to visit. I come from an India that derives its vocabulary from Ishwar Chandra Vidyasagar. And I also come from an India where Vidyasagar's bust was vandalized by ruling party at the center. I come from an India where we worship Ma Durga as Supreme Shakti. And I also come from an India where Ma Durga's ancestry is questioned by BJP leaders. Sir, I really come from two India. And honestly, I'm tired of explaining this house which India I belong to. Because the truth are, they both exist. And until and unless we acknowledge the second one exists, we will never be able to be the first one we claim to be. So budgets can divide, politics can polarize, power can pretend, but there's something deeper than budgets, older than governments, and stronger than fear, which is the moral imagination of the people. When institutions weaken and language loses its faith, it is our literature, our culture, our shared memory that rises to remind the nation of who it is and who it must never cease to be. So I finally return to the Constitution. When you open the Constitution, it opens with the words, we, the people of India. मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव बताती हूँ. मुझे अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए एज अ सांसद. जून में 2 साल में कंप्लीट करूंगी. लेकिन बंगाल का चुनाव 7वां चुनाव है जिसमें योगदान करने का मुझे मौका मिल रहा है. इसलिए चुनाव तो यहां चलते रहेंगे, लेकिन चुनाव बहाना नहीं बन सकता हमारे देश की मातृशक्ति का हक मारने के लिए. अखिलेश जी ने विचार परिवार की भी बात करी. मैं शायद वो इस बात से अवगत नहीं है, क्योंकि मैं भी राष्ट्रीय सेविका समिति की ही एक कार्यकर्ता हूं. पिछले 90 वर्षों से राष्ट्रीय सेविका समिति संघ के साथ कदम से कदम मिलाकर इस देश की सेवा कर रही है. महोदया, एक भय, एक भ्रम बना दिया गया है डीलिमिटेशन को. मैं आपके माध्यम से ये बात स्पष्ट कर दूं हमारे विपक्ष के साथियों को
डीलिमिटेशन यानी परिसीमन भारतीय जनता पार्टी का प्रपंच नहीं है. इट इज नॉट अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ द बीजेपी, इट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म. वही कॉन्स्टिट्यूशन, वही संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है, उन्हीं के रचित कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये प्रावधान है, ये मैकेनिज्म है जहां पर डीलिमिटेशन अनिवार्य है. पर महोदया, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहती हूं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करना मंजिल है, परिसीमन केवल और केवल राह है. आप राह और मंजिल में कंफ्यूज मत होइए. प्लीज डू नॉट कंफ्यूज द रोड एंड द डेस्टिनेशन. डीलिमिटेशन इज ओनली द रोड. इट इज नारी शक्ति वंदन अधिनियम, द वुमेन रिजर्वेशन, which is the destination, and it is high time that we complete that journey to that destination. एक और बात कही गई, यहां पर बोला गया कि 543 में क्यों नहीं लगा देते, और मैं हैरान हुई जब एक महिला सांसद ने यह कह दिया कि आप परिसीमन कर सीटें बढ़ा रहे हैं, यह तो शोविनिज्म है. शोविनिज्म का आरोप लगाते हुए ये भूल गई कि 543 सीटें पुरुषों का एकाधिकार नहीं है. वो भूल गई कि इन 543 में आज भी 74 पर हम नारी शक्ति का रिप्रेजेंटेशन करते हैं. महिला सांसद भी है इस सदन में. आप रिजर्वेशन को एब्स्ट्रैक्ट में लागू नहीं कर सकते. आपको रिजर्वेशन को आइडेंटिफाइड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही करना पड़ेगा, और इसीलिए परिसीमन आवश्यक है, सीटों की बढ़ोतरी आवश्यक है. कई लोगों ने पूछा कि आप 543 में ही क्यों नहीं लागू कर देते. मैं याद कराना चाहती हूं कि ये जो अभी कॉम्पोजिशन है 543 सीटों की, ये 1971 के बेसिस से, उनके सेंसस के बेसिस पे है. तब भारत की पॉपुलेशन वाज ओनली 51.4 करोड़. आज भारत की पॉपुलेशन 3 दुगनी हो गई है. हम आज 140 करोड़ का देश है. महोदया, ये सदन अनर्थ करेगा अगर महिला सशक्तिकरण की केवल बात करता है और महिला आरक्षण पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट करते हुए इंप्लीमेंट नहीं करेगा. नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए यह अनिवार्य है कि परिसीमन हो और सीटें बढ़ाई जाए. 74 से 273 तक का ये जो सफर है, ये केवल मातृशक्ति के उत्थान के लिए नहीं, ये इस राष्ट्र को सुदृढ़ करने के लिए, इस राष्ट्र में एक स्वर्णिम अध्याय लिखने के लिए. एक और बोली गई बात, यहां पर उन्होंने कहा कि आप जनगणना नहीं करना चाहते. मैं पुनः याद कराना चाहूंगी, आज सुबह ही माननीय गृह मंत्री ने रिकॉर्ड पे बोला है जनगणना की प्रक्रिया चालू हो गई है. उसमें कास्ट सेंसस केंद्र सरकार करवा रही है. लेकिन महोदय, ऐसा लग रहा है कि महिलाओं को आधार तो क्या मिला, विरोधियों का आधार ही खिसक गया है. महिलाओं का अधिकार से अगर आपका आधार खिसकता है तो ये आपका राजनीतिक अवसरवाद है. पर मैं आज करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगी विपक्ष के सभी साथियों से कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट सॉल्यूशन इस विधेयक में, इस बिल में बनाया गया है, जहां पर यह सुनिश्चित करा गया है कि जो टेरिटोरियल ज्योग्राफी है वो तो 2011 के सेंसस के बेसिस पे करी जाए, लेकिन जो सीटों की बढ़ोतरी है उसमें किसी भी, मैं पुनः कहती हूं, किसी भी राज्य का हक ना मारा जाए. अरे आज तो सदन में खड़े होकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी तक दे दी, और हमसे पूछिए, हम आपको बताना चाहते हैं, मोदी की गारंटी सारी गारंटी पूरी करने की गारंटी.